एक व्यवस्था हम सबको यहाँ पर बनानी पड़ेगी। यंग इंडिया ओल्ड लीडर्स, हमारे विशिष्ट अतिथि यहाँ पहुँच चुके हैं। हम पहले तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपने विशिष्ट अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन यहाँ करेंगे। प्रोफेसर रामजीत सिंह जी, जाने माने गांधीवादी, पूर्व सांसद, बैठे हैं हमारे साथ। एडवोकेट नदीम जावेद साहब, विधायक जौनपुर यूपी से हमारे साथ हैं। डॉक्टर कंदर्प कुमार डेका, वीसी डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी असम से हमारे साथ हैं। राहुल बोंडेरे, कांग्रेस के एमएलए, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। और अपने कार्यक्रम की परंपरा के अनुसार सबसे पहले यहाँ मंच पर हम अपने विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं निवेदन करूँगी डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी से और हमारे चीफ कन्वीनर राहुल कराड़ जी से कि हमारे आज के विशिष्ट अतिथियों, मुख्य वक्ताओं का स्वागत करें। सबसे पहले प्रोफेसर रामजीत सिंह साहब का स्वागत, जाने माने गांधीवादी और पूर्व सांसद, शिक्षाविद। तालियों से हम स्वागत करेंगे प्रोफेसर रामजीत सिंह साहब का, भारतीय छात्र संसद के मंच से। तालियों में कोई कमी होनी नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगेगा अगर आपकी आत्मा हम तक पहुंचेगी। हमारे साथ नदीम जावेद साहब, हमारे दूसरे प्रमुख वक्ता, जौनपुर यूपी से विधायक और पूर्व NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। आपका भी हम यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर कंदर्प कुमार डेका, वाइस चांसलर, डिब्रूगढ़ असम, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब का भी स्वागत करते हैं। डॉक्टर कंदर्प कुमार डेका साहब। हम स्वागत करते हैं राहुल बोंडरे साहब का, जो कि कांग्रेस एमएलए हैं, चिखली बुल्डाना से आते हैं। राहुल बोंडरे साहब, तालियों से स्वागत करेंगे। प्रारंभिक रिमार्क्स के लिए मैं आमंत्रित करूंगी जाने माने शिक्षाविद और डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब कंदर्प कुमार डेका जी को कि वो आए और ओपनिंग रिमार्क्स दें। Respected distinguished guests on the dais, and my dear friends. So I would go straight to the opening remarks. India has the largest youth population in the world, which is poised to increase further in the coming decades. About 70% of India's population is below the age of 35 years. According to the initial figures of the 2011 census, the youth population in the country, including the adolescents, is around 550 million. This phenomenal rise in youth population has made India the youngest nation of the world. This unique situation, if tapped wisely, shall create unique opportunities along with the significant challenges both for the economy and the society. However, it is felt that there is an increasing sense of frustration and disappointment among the major sections of the youth in India regarding the political system and with the political class, and decision between the young India and the political India appears to be ever growing. The Parliament of India possesses legislative supremacy and thereby ultimate power over all political bodies in India. But question arises whether the Parliament is a house for the elderly people. So far these statistics go, the current Lok Sabha, that is the 13th Lok Sabha, has the maximum number of members of over 70 years of age. 210 members, or roughly 40%, are over the age of 55 years of age. It is to be noted that the 13th Lok Sabha is the oldest, with an average of 55.5 years. Interestingly, its predecessor, the 12th Lok Sabha,
was the youngest, with an average of 46.4 years. It was a marked departure from the general trend which saw older MPs most times in successive houses. The first lower house in 1952 had only one MP over 70 years of age, while the last Lok Sabha had 33 MPs in the same group. The current house has 35 members who have crossed 70 years of age. The reverse, a decline in the number of younger members, is also true. The first Lok Sabha had 112 members having age under 40. The second had 151, and the current has only 79, just marginally better than the last one, which had 78 young MPs. Democracy is incomplete without the will of the masses, and today the majority of the young masses demand a younger leadership whom they can bank upon. However, analysis of the profile of the current parliament reveals some uncomfortable trend. A disaggregated analysis of the political background of MPs with age suggests that there is a direct linear relationship between the age and hereditary MPs. A greater proportion of younger MPs have a family political background in comparison to others. All MPs whose age is less than 30 years are hereditary. More than two-thirds of MPs aged under 40 years are hereditary. The average of hereditary MP is 48 years, whereas the average age of an MP with no significant family ground is 50 years. Youth in India may have developed apathy to politics, but they are certainly not apolitical. They have been proactive in the drive to bring positive socio-political changes. In the coming years, youth and democracy will share a strong band. The involvement of this section will multiply as political establishment would tend to cater to the needs of the future leaders. By some estimates, between the period of 2010 and 2030, India will add 241 million people in working age population. The views of this ever-growing multitude of the youth provide a glimpse into India's future. India Today survey calls it a unique combination of a deep pessimism about the government and politics, as well as sunny optimism about their own lives and property. The pessimism has to be progressively converted to optimism, and this highly productive workforce has to be deeply embedded in the democratic ideals, thereby using this demographic dividend in the cause of the nation. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया डेका साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, जैसे कि आप समझ गए हैं, भारतीय छात्र संसद का ये मंच छात्र नेताओं को प्रोत्साहित करने का मंच है। मैं आमंत्रित कर रही हूं विवेक कुमार हमारे साथ हैं, IITM कानपुर से आप आते हैं। विवेक, आइए और आज के विषय पर अपने विचार रखिए। विवेक कुमार। नमस्कार मेरे देश के युवा मित्रों, और मैं प्रणाम करता हूं मंच पर बैठे सभी गणमान्य व्यक्तियों का। मित्रों, मेरे वाचन का विषय बिल्कुल स्पष्ट है, यंग इंडिया ओल्ड लीडर्स। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। वर्ष 2011 में जो जनगणना हुई है उसके अनुसार 65% से अधिक भारतीय युवा हैं, 35 वर्ष से कम उम्र के हैं। अगर यह उम्र सीमा बढ़ाकर हम 40 से 42 वर्ष कर दें तो यह आंकड़ा 70% के पार होगा। ऐसी स्थिति में मेरा प्रश्न आपसे यह है, अगर संपूर्ण भारत युवा है, अगर भारत की जनसंख्या में युवाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा है, तो सभी शीर्ष पदों पर पदासीन नेता, मंत्री और राजनेता उम्र दराज क्यों हैं? यही मेरा प्रश्न है आपसे। अब आप मुझसे यह पूछोगे क्या फर्क पड़ता है शीर्ष पद पर चाहे कोई युवा हो या बुजुर्ग, तो मैं आपको कहूंगा फर्क पड़ता है। और फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि वह जोश, जुनून, ताकत, हिम्मत और बदलाव लाने की क्षमता जो एक युवा नेता में होती है किसी अन्य में नहीं हो सकती। मित्रों, हम बात करते हैं मिशन 2020 की। हमने एक सपना सजाया है वर्ष 2020 तक अपने राष्ट्र को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाकर खड़ा करने का। तो मैं आपको कह दूं कि यह सिर्फ और सिर्फ तभी संभव है जब देश की बागडोर हम युवा के हाथों में होगी। मित्रों, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने स्वयं कहा है, इफ इंडिया इज टू बी डेवलप्ड बाय 2020 इट विल डू सो ओनली बाय राइडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ यंग। जो विश्वास कलाम साहब ने हम युवाओं पर जताया है उसके संदर्भ में मैं आपको एक दो उदाहरण दूंगा। मैं बात करना चाहूंगा आजाद भारत के 7वें प्रधानमंत्री
स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का, जिनकी उम्र मात्र 40 वर्ष थी जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद को संभाला, और उनके द्वारा किए गए औद्योगिकरण के क्षेत्र में, सूचना प्रौद्योगिकीकरण के क्षेत्र में, वैश्वीकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों से जो हमारे राष्ट्र की विकास को गति मिली है वह जग जाहिर है मित्रों, उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। आज हम धड़ल्ले से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे मुट्ठी में टैबलेट कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर है, हमारे पास सुपर कंप्यूटर की ताकत है। तो मैं आपको कह दूं, यह सिर्फ और सिर्फ उसी युवा नेता की युवा सोच का परिणाम है मित्रों। मैं बात करना चाहूँगा अखिलेश यादव जी का, जो इस समय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं। उन्होंने बीड़ा उठाया है उत्तर प्रदेश के सभी युवा के हाथों में कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर पकड़ाने का। मित्रों, आज हमें पता है कि कंप्यूटर की जानकारी होना, उसके संचालन करने की जानकारी होना कितना आवश्यक है। बिना उसके हम जमाने से कदम मिलाकर नहीं चल सकते। इसी आवश्यकता की पूर्ति कर रही माननीय मुख्यमंत्री जी की युवा सोच, मैं सलाम करता हूं उनकी इस युवा सोच का। मैं सलाम करता हूं उत्तर प्रदेश की 19 करोड़ 96 लाख जनता का, जिन्होंने भरोसा किया माननीय मुख्यमंत्री जी के युवा कंधों पे और सौंप दी प्रदेश की कमान उनके हाथों में। मैं बात करना चाहूँगा जम्मू कश्मीर के उस महान नेता का, जिन्होंने वहाँ वह कार्य कर दिखाया जो पिछले 30 सालों तक कोई सरकार नहीं कर पाई थी। मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ पिछले 30 सालों तक कोई सरकार वह कार्य नहीं कर पाई थी। अगर लोकतंत्र के सशक्तिकरण के उद्देश्य से जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव हो पाए हैं तो वह सिर्फ और सिर्फ माननीय उमर अब्दुल्ला जी की कड़ी मेहनत और परिश्रम का नतीजा है, जो यह साबित करती है सिर्फ एक युवा सोच ही बदलाव ला सकती है। मित्रों, सिर्फ एक युवा सोच ही बदलाव ला सकती है। लेकिन आप मेरी बातों से कतई न समझ लें कि मैं यह कहना चाहता हूं कि सभी बुजुर्ग नेताओं को राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। कतई नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कह रहा। हमारे देश के युवा राजनेताओं की टीम को बुजुर्ग नेताओं की सख्त उसी प्रकार आवश्यकता है जैसे क्रिकेट टीम में कोच की आवश्यकता होती है, बिना जिसके टीम पूरी नहीं होती। मित्रों, आज आवश्यकता यह है कि सभी बुजुर्ग नेता अपने अनुभव के आधार पे, अपने तजुर्बे के आधार पे सभी युवा राजनेताओं का मार्गदर्शन करें और युवाओं को राजनीति में आने के लिए उनका मार्ग प्रशस्त करें। मित्रों, मैं सभी युवा नेताओं से आग्रह करना चाहूँगा कि कृपया वो अपनी मेहनत से, अपनी सूझबूझ से हमारे देश के विकास को गति दें। मित्रों, लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक है और यही हमारे लिए सुअवसर है हम अपने देश के प्रति जिम्मेदारी निभाने का। करना सिर्फ यह है, एक सही नेता चुनना है, एक युवा नेता चुनना है। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैंने फैसला कर लिया है, अगर विवेक को चुनना हो कोई नेता तो वह चुनेगा युवा नेता। अब बारी आपकी है मित्रों। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया विवेक। और मैं राहुल जी से निवेदन करूंगी कि इस युवा छात्र नेता का यहाँ पर सम्मान करें। भारतीय छात्र संसद के मंच पर आप तालियां बजाकर इनके जोश को सलाम करिए, तालियां बजाइए। और हमारी दूसरी छात्र नेता लिली लाकरा इस समय हमारे साथ हैं, जो कि असम से आती हैं और कारुण्य यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर में इस समय पढ़ रही हैं। लिली लाकरा आपके साथ में आ रही हैं आज के विषय पर बात करने के लिए। लिली। Namaste. I'm Lily from Karunya University and I'm going to speak on Young India Old Leaders. India is expected to become the world's youngest nation by 2020 with an age group of 20 and 50 years now constituting over 60% of the population. It sounds great, something to boast about. But what is the use when this young, vibrant, educated, professional young nation is not doing anything for the country? They go work for multinational companies and increase other countries' wealth. 35% of Microsoft employees are Indians. This young nation has been riding on the shoulders of old parliamentarians. There are hardly any young parliamentarians. In India, most of the leaders have crossed their 70s. They need people to help them stand on their feet, which means they require 2 to 3 paid personal assistants just to lift them up. Again, very few of the old ministers have a sound educational background. If this uneducated can run the country to an okay stage, how much more higher with the younger generation who are educated, technically skilled, vibrant, sophisticated, will be able to take our country to. This young generation will be able to infuse creativity and dynamism in the national affairs. We are proud to have the few young leaders, but there is something common in them, if we have noticed. They are all from politics background. Either their parents or their grandparents were politicians. Can only the politicians' children become leader?
Again, from this, we can learn that these young leaders is because of the elders' influence and support that they have joined politics. If every youth were given such support, there would be many to join. We have young people who strive to take responsibilities, work under adverse conditions, and they have not forgotten their ethics. In India, every being is taught to respect the elders. But what if the elders and that to the leaders are involved in so many corrupt practices? Whom will the young follow? Who will set examples for them? An analysis of the age of Union Cabinet ministers has shown that barring one instance, each time a reshuffle took place, the cabinet became older. The average age of cabinet, which was 60.46 at the time of National Democratic Alliance, last reshuffle in 2003 has jumped to 65.3. However, another reshuffle in January 2011, the average age of Council of Ministers has increased to an all-time high of 60.20. In July, however, another reshuffle has brought it down by a whisker of 59.73. What I did like to suggest is that it be made mandatory to reserve seats for young, not only for the famous personalities, to contest in the elections. The young leaders should be given adequate support and the old leaders should not dominate them. There should be an age limit for the old leaders, after which they retire, and it should be strongly followed, and newcomers join in with new ideas for the betterment of the nation. Patriotism can be shown even without being a leader. So after getting retired, the ex-leaders can give their wise suggestions, and if efficient, it should be respected. I would also like to tell the young India to show active participation in every affair of the nation in the days to come, more than what they have shown in the past years. We are the pillars of tomorrow. We are what the nation is made up of. Let us rise, let us shine. Jai Hind. शुक्रिया लिली, और आपके सजेशंस को ज़रूर हम सब ने सुना है, इस पर अमल भी हो सकता है भविष्य में। स्वागत और सत्कार और अभिनंदन करेंगे इस मंच से लिली का, एक होनहार युवा छात्र नेता का स्वागत करेंगे तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, हमेशा की तरह। महिलाओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है राजनीति में आने की। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मित्रों, आदर्श युवा विधायक का पुरस्कार हम प्रदान करेंगे इस मंच से। वो युवा विधायक जो कि अपने क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहे हैं, अहम काम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए इस वर्ष से भारतीय छात्र संसद के मंच से इस पुरस्कार को प्रदान किया जा रहा है। और मैं आमंत्रित करूंगी मंच पर अरुण कुमार को। अरुण कुमार यंग एमएलए सुल्तानपुर सदर से आते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अरुण कुमार का स्वागत करेंगे यहाँ पर। आदर्श युवा विधायक का पुरस्कार मैं अपने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम स्वागत करेंगे इस यंग एमएलए का। इनके आगे अभी पूरी जिंदगी पड़ी है और हम उम्मीद करते हैं कि और अच्छे काम करके ये राजनीति में अपना नाम कमाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अरुण जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आज इस पुणे में स्थित MRT कॉलेज ऑफ स्कूल गवर्नमेंट में हो रहे तीसरे भारतीय छात्र संसद के इस कार्यक्रम में प्रोफेसर रामजी सिंह जी का, जो पूर्व लोकसभा के मेंबर हैं और हमारे बगल जिले के भाई नदीम जावेद जी का, जो विधायक हैं जौनपुर से, और इसके चेयरमैन राहुल करत जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने यहाँ पुणे बुला के मेरा सम्मान किया। मित्रों, आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एक नौजवान जो सामने बैठे, देश के भविष्य, इनके बीच बोलने का मौका मिला है। समय कम है तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि साथियों, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी
जिनको आज आपके बीच आना था, किसी कारणवश नहीं आ पाए, मैं उनका आभारी हूं। अभी मंच पे मैं 2 सेशन देख रहा हूं बैठ के। हमारे एक साथी ने बोला कि नेता MP MLA राजमहलों से होते हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं, मैं एक साधारण परिवार का बेटा हूं। मेरे परिवार में ना तो कोई ग्राम प्रधान है, ना तो कोई सदस्य तक है, लेकिन मैं बधाई देता हूं, आभार प्रकट करता हूं उत्तर प्रदेश के शानदार नौजवान मुख्यमंत्री और देश के भविष्य माननीय अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने एक साधारण परिवार के बेटे के ऊपर अपना हाथ रख के टिकट देके और सुल्तानपुर जनपद में जहां से सबसे अधिक वोटों से जीतने का मौका मिला। भाई नदीम जावेद जी बैठे हैं, वो जानते हैं कि सुल्तानपुर जिला अमेठी जिला है, जहां पे कांग्रेस का गढ़ है, राहुल गांधी जी का क्षेत्र है। उस सीट से मैं जीत के आया हूं, जहां पे समाजवादी पार्टी कभी 20,000 वोट नहीं क्रॉस किया है, लेकिन नौजवानों और बुजुर्गों के आशीर्वाद से मैं 25,000 वोट से जीत के आया हूं। तो अंत में जी मैं यही कहना चाहता हूं, खासतौर से नौजवानों के लिए, कि आप लोग राजनीति में आइए। यंग इंडिया ओल्ड लीडर के बारे में समय कम है, कहना बहुत चाहता था। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अरुण कुमार वर्मा। आपने इंडो अमेरिकन सुनीता विलियम्स का नाम जरूर सुना होगा, जिन्होंने अंतरिक्ष पर फतेह हासिल की है, अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने का एक महिला के नाते रिकॉर्ड बनाया है, लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक की है। उन्होंने हमारे सपनों को, हमारी दुनिया को मित्रों अंतरिक्ष तक खोल दिया है। ऐसा लगता है कि जब सुनीता विलियम्स कर सकती हैं तो नीलम शर्मा क्यों नहीं कर सकती, या अरुण कुमार वर्मा क्यों नहीं कर सकते, या आप क्यों नहीं कर सकते। हाल ही में MIT में इसी भारतीय छात्र संसद के एक इनिशिएटिव के तौर पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, जहां पर स्टूडेंट्स ने अनीता विलियम्स से बातचीत की थी। आइए उसकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप हम देख लें। It's so exciting to see you, ma'am. I know this forum addresses leadership and all these young leaders out there. I see it's like hundreds of you guys out there. My gosh, this audience is huge. Wow. So I'm happy to be here. Hello, good morning to you, Sunita ji. I know that 10th, 11th, 12th was not suitable for your office to interact with that particular gathering, but I think I'm happy that the Bharatiya Chhatra Sansad today, one way it is getting unveiled. After being miles away from the earth into the space, what does travel exactly mean to you? It's so exciting to see you, ma'am. I know this forum addresses leadership and all these young leaders out there. I see it's like hundreds of you guys out there. My gosh, this audience is huge. Wow. So I'm happy to be here. Hello, good morning to you, Sunita ji. I know that 10th, 11th, 12th was not suitable for your office to interact with that particular gathering, but I think I'm happy that the Bharatiya Chhatra Sansad today, one way it is getting unveiled. After being miles away from the earth into the space, what does travel exactly mean to you? If you have to go to another country and you come back and you land in your home country, though it's not the city that you live in, you feel like you're home, right? Yeah. And it continues on. So then when you're in low Earth orbit, say like we were in the space station, and you land in Kazakhstan like we did, even though it's really far away, you feel like it's home because it's Earth. And we hope that one day that when you're flying to Mars or the moon, and you come back to low Earth orbit around our planet, you'll feel like it's home. We actually had a different Sunita scene today, different from being an astronaut. Definitely you're a very warm person at hand. And can we have a standing ovation for Sunita Williams, please? We honor you, love you, respect you, ma'am. Very close to our hearts, very close. तो ये थी सुनीता विलियम्स। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ
इंडो अमेरिकन सुनीता विलियम्स वो हमारी ही है, शायद वो पूरी दुनिया की है। और अब आज के विषय पर बात करने के लिए मैं यहाँ बड़े सादर और सत्कार के साथ आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे मुख्य वक्ता नदीम जावेद साहब को, जो कि जौनपुर उत्तर प्रदेश से विधायक हैं और पूर्व NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, छात्र राजनीति से सक्रिय रहे हैं राजनीति में। नदीम जावेद साहब, आपका स्वागत है, आइए और हमें संबोधित कीजिए। आदरणीय विश्वनाथ करात जी, भाई राहुल करात जी, वाइस चांसलर डेका साहब, प्रख्यात गांधीवादी आदरणीय राम सिंह जी, नीलेश भाई मेरे दोस्त और साथी और भाई जिनकी मोहब्बत में मैं यहाँ चला आया, नूरुद्दीन भाई, सत्यजीत तांबे हमारे छोटे भाई, अरुण भाई जो MLA हैं, यूपी से आए हैं मेरे बगल के ज़िले से, राहुल भाई, यहाँ पर मौजूद बुज़ुर्गों की तादाद तो बहुत कम है, मुल्क के मालिकों, नौजवान दोस्तों, विषय बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझको इस विषय पर बात करने के लिए कहा गया। मैं यहाँ पर MLA की हैसियत से भी नहीं आया हूँ और यहाँ पे मैं NSUI के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से भी नहीं आया हूँ। मैं 16 साल हॉस्टल में रहा और तकरीबन 12 साल स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहा और स्टूडेंट एक्टिविस्ट की हैसियत से, स्टूडेंट सिपाही की हैसियत से आपके बीच में हाजिर हुआ। और डिस्ट्रिक्ट यूनिट से लेकर नेशनल लेवल पर जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, उसको हेड करने का एक कार्यकर्ता के रूप में मुझको सौभाग्य प्राप्त हुआ। और न केवल NSUI को, बल्कि जो स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन होते हैं और अब तो हिंदुस्तान में बहुत कम जगहों पे बचे, और ख़ास तौर से दिल्ली यूनिवर्सिटी जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन होता है और जिसमें ये समझा जाता है कि देश का जो सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल क्लास है, वो स्टीफेंस कॉलेज हो, हिंदू हो, SRCC हो, रामबस हो, मिरांडा हाउस हो, या इस तरह के जितने कॉलेजेस हैं जहाँ पे कट ऑफ लिस्ट 95 to 98% जाती है, उन कॉलेजेस की स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में सम्मिलित होती हैं। तो उनमें भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने का सौभाग्य रहा। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि ये समझा जाता है कि इस देश के अंदर इंटेलेक्चुअल्स का जो सचमुच का सेंटर है, 4,000 स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ता है, लेकिन सचमुच एक बड़ा सेंटर है, वहाँ पे भी काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन स्टूडेंट मूवमेंट पिछले वर्षों में कमज़ोर पड़ा है और उसका जो मेन कारण रहा है वो ये रहा है कि छात्र संघ के चुनाव पे बहुत सारी जगहों पे लिंग 2 की सिफारिशों के बाद पाबंदी लग गई। पाबंदी लगने के बाद जिस तरह का स्टूडेंट मूवमेंट पिछले 10-12 वर्षों में होना चाहिए था इस देश के अंदर, उस तरह का स्टूडेंट मूवमेंट हुआ नहीं। और उसी जमाने में मुझे याद है, राहुल भाई आप मिले थे, राहुल गांधी जी इंचार्ज बने थे हमारे, और राहुल भाई आए थे और उन्होंने उस समय मुझसे कहा था कि इस तरह का एक इंस्टीट्यूशन हम बनाना चाहते हैं। तो सच्ची बात यह है कि हमारी भी समझ में नहीं आया कि ये किस तरह का इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं, क्या ख्वाब क्या है, बनाना क्या चाहते हैं, मकसद क्या है, करेंगे किस तरह से, लीडरशिप को कहां से लाएंगे। लेकिन मुझे आज देख के खुशी होती है कि पूरे हिंदुस्तान के कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक के छात्रों को आपने इकट्ठा किया है और एक विजनरी लीडरशिप देने का काम किया। कहते हैं भाई विजनरी लीडरशिप होती क्या है, विजन क्या होता है? विजन वो होता है कि व्यक्ति अपनी आंख से आने वाले समय को पहचान ले। आने वाला समय क्या है, आने वाला भारत क्या है, आने वाला राज्य क्या है, आने वाला राजनीति क्या है, उसको पहचान ले। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। इस तरह का कहीं मैंने पूरे देश में घूमता हूं, कहीं देखा नहीं। और आप ही के हवाले से एक शेर भी मुझे बड़ा खूबसूरत याद आ रहा है, वो सुनाते हुए बात को बढ़ाऊंगा कि हो जिसके पांव में ताकत वो चल के रहता है, हो जिसके पांव में ताकत वो चल के रहता है, जमाना लाग गिराए संभल के रहता है, वो जिस चिराग में ताकत हो लौ बढ़ाने की, हवाएं कितना बुझाएं वो जल के रहता है। हिंदुस्तान बहुत अलग तरह का मुल्क है। इस देश में हर 50 किलोमीटर पर जुबान बदलती है, इस देश में हर 500 किलोमीटर पर शक्लें बदलती हैं, हर राज्य में एक देश बसता है और ये देश इकट्ठा है। और उस इकट्ठा होने का जो मूल कारण है, मैं समझता हूं, वो लोकतंत्र है, वो जमहूरियत है। और जमहूरियत की वजह से ये मुल्क इकट्ठा है। आसपास के बहुत सारे देश हैं, हमारे साथ पाकिस्तान बना, वहां की जमहूरियत के, वहां के लोकतंत्र की हालात आप जानते हैं। अफगानिस्तान है, सारे अरब राष्ट्र हैं, आसपास चाइना है, तरक्की में बड़ा नाम है चाइना का, लेकिन वहां पर
2 दशक पहले वहां की स्टूडेंट्स ने एक बड़ा मूवमेंट चलाया था कि यहां पे जमहूरियत आनी चाहिए, यहां पे डेमोक्रेसी आनी चाहिए, यहां पे लोकतंत्र आना चाहिए। मगर वो लोकतंत्र वहां नहीं आया, उनके ऊपर टैंक से हमला किया गया था और टैंक से दबा दिया गया। लेकिन इस देश में जमहूरियत है, इस देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र होने की वजह से हम अपनी बात को यहां भी रखते हैं और वोट के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव पंचायत से लेकर लोकसभा तक करने का काम करते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र आया क्यों? आजादी के आंदोलन में, फ्रीडम स्ट्रगल में गांधी ने सोचा था, और गांधी के साथ जो तमाम लोग थे उन्होंने ये सोचा था कि इस देश को अगर बचाना है और संभाल के रखना है तो एक रास्ता है, रास्ता जमहूरियत का है, रास्ता डेमोक्रेसी का है। बहुत सारे लोग इख्तिलाफ कर रहे थे। उस समय भी बहुत सारे लोग कहते थे कि यहां पे लोकतंत्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत परिपक्व राष्ट्र नहीं है, जनतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए, जमहूरियत के लिए तैयार नहीं है। और अल्लामा इकबाल का शेर जो कोई सुना रहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अल्लामा इकबाल ने लिखा कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें लोगों को गिना जाता है, तौला नहीं जाता। ये मुल्क तैयार नहीं है जमहूरियत के लिए, लेकिन गांधी ने कहा नहीं, इस देश में जमहूरियत होनी चाहिए और वही रास्ता है। और इस मुल्क में जमहूरियत आई, जिसकी वजह से हम सब जिंदा हैं, जिसकी वजह से ये मुल्क इकट्ठा है, जिसकी वजह से हम सब मिलकर आज़ादी की सांस ले रहे हैं। जमहूरियत को मजबूत करने की बात है और नौजवानों की भागीदारी की बात है। लेकिन चूंकि गांधी की प्रतिमा आपने लगा रखी है, इसलिए मुझे 2-4 बातें, मैं तो तैयार करके कुछ और आया था, लेकिन मैं अलग से बात कर रहा हूं। गांधी ने एक नया रास्ता दिखाया था, और गांधी ने रास्ता यह दिखाया था कि तमाम दुनिया में जो आंदोलन हो रहे थे, और गांधीवादी बैठे हुए हैं आराम सिंह जी, कि गांधी ने एक रास्ता दिखाया कि हथियार के बगैर भी कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। क्रांति के एक ऐसी क्रांति जो शस्त्र से नहीं होगी, एक ऐसी क्रांति जो असलहे से नहीं होगी, एक ऐसा आंदोलन जो जनता खड़ा करेगी, महात्मा गांधी ने किया था। बिहार से लोग आए होंगे, चंपारण आज भी है। 1917 में सोवियत रूस में क्रांति हो रही थी साम्यवादियों की, और 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण के गांव से इस देश को आजाद कराने का पहला मूवमेंट खड़ा किया था। और 1942 का जब आंदोलन हुआ तो हिंदुस्तान के तमाम छात्र, नौजवान, किसान, नौजवानों की बड़ी तादाद थी, छात्रों की बड़ी तादाद थी जो आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के साथ जुड़े। हो सकता है कि बुजुर्ग नेतृत्व रहा हो, लेकिन महात्मा गांधी को ताकत देने का काम अगर किसी ने किया था तो नौजवानों ने किया था। आजादी के बाद हालात बदले, और सच्ची बात यह है कि आजादी के बाद अगर किसी व्यक्ति ने ईमानदारी के साथ इस देश में छात्रों को और नौजवानों को अधिकार देने का काम किया तो वह राजीव गांधी ने किया था। और इसलिए किया था, और उसको हवाले से कहता हूं, इसलिए किया था राजीव गांधी ने कि पंचायतों में आरक्षण दिया महिलाओं को, 50% आरक्षण। उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी को समझा, विजनरी लीडरशिप, जिसको मैं कह रहा था कि वो आंख थी जो आने वाले हिंदुस्तान को पढ़ रही थी, वो सोच थी जो देख रही थी कि क्या होगा। उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी ले आए, ये कंप्यूटर, ये मोबाइल फोन, ये इंटरनेट, राजीव गांधी की देन। लेकिन 89 के बाद, और विशेष रूप से राजीव गांधी जी की शहादत के बाद, 3 वजहों से मैं समझता हूं जो बुनियादी वजहें हैं जिनकी वजह से इस देश के अंदर जो नौजवानों की भागीदारी है और छात्रों की भागीदारी है वो कम हुई है। और वो 3 कारण है। नंबर 1 जातिवाद, जिसका शिकार लगभग पूरा देश हो गया है। दूसरी है सांप्रदायिकता, और तीसरी है क्षेत्रवाद। और सांप्रदायिकता से बात शुरू करता हूं। राजीव गांधी के बाद जब लगा कि इस देश के अंदर नौजवानों का सशक्तिकरण होगा, छात्रों का सशक्तिकरण होगा, सत्ता में उनकी भारी भागीदारी मजबूती के साथ होगी, तो क्या हुआ? पूरे देश में सांप्रदायिकता का जहर फैल गया। और मैं वहीं से आता हूं जिसका जिक्र अभी भाई कर रहे थे। अयोध्या हमारे यहां से 50 किलोमीटर पे है। अयोध्या शहर के अंदर कभी सांप्रदायिक शक्तियां जीतती नहीं है। वो लोग जिन्होंने अयोध्या में नफरत फैलाई वो कभी चुनाव ना विधानसभा का जीतते हैं ना लोकसभा का जीतते हैं। और उसी अयोध्या शहर में अशफाकुल्ला खान ने हंसते हुए फांसी के फंदे को चूमा था। और अशफाकुल्ला खान ने यह दुआ की थी कि ऐ परवरदिगार, अगर दोबारा पैदा करना तो इसी धरती पर, इसी सरजमीन पर पैदा करना, ताकि अंग्रेजों के जुल्म और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ सकूं।
सांप्रदायिकता के खिलाफ। भगत सिंह 22-23 साल का नौजवान फांसी के फंदे पे चढ़ा था। मैं इसलिए बात को कह रहा हूं, नेतृत्व की बात कर रहा हूं। भाई ने हमारे कहा है कि विषय है यंग इंडिया और ओल्ड लीडरशिप, उसी पे आ रहा हूं, विषय पे ही आ रहा हूं। इसलिए कि ये सारे लोग जिनके हवाले से मैं बात कर रहा हूं, ये सारे लीडरशिप है, ये हमारे आइडियल और रोल मॉडल होने चाहिए। भगत सिंह 22 साल की उम्र में फांसी के फंदे पे चढ़े थे, तो भगत सिंह ने अपनी माँ से कहा था कि माँ, मैं तुमसे निवेदन करता हूं, मैं तुमसे गुजारिश करता हूं कि तुम हंसते हुए यहां से जाओ। और नौजवान बेटे को फांसी पर चढ़ता हुआ देखकर यह ऐतिहासिक सत्य है कि भगत सिंह की मां बाहर हंसते हुए निकली थी। तो हिंदुस्तान के कंपोजिट कल्चर है, हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब है। तो सांप्रदायिक शक्तियों ने इस्तेमाल किया युवा शक्ति का, छात्र शक्ति का, और उसमें नौजवानों को तो कुछ नहीं मिला, लेकिन कुछ लोगों को जरूर हासिल हो गया। क्षेत्रवाद के नाम पे कुछ नेतृत्व पैदा हुए। आसाम का हवाला देता हूं, अभी कोई साथी थे, प्रफुल्ल कुमार महंता के नेतृत्व में सरकार बनी। वहां पे एक ऐसा आंदोलन था जो विश्वविद्यालय से निकला था। प्रफुल्ल कुमार महंता विश्वविद्यालय से निकल के सीधे राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन कोई विचार नहीं था, कोई भागीदारी की बात नहीं थी, नौजवानों को जोड़ने का कोई संकल्प नहीं था, इसलिए वो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। और इसी तरह से जो जातिवादी आंदोलन हुए, वो जातिवादी आंदोलन में भी कुछ लोग तो निकल के आए, लेकिन मजबूती के साथ एक बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा हो पाया। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, अभी शबाना आजमी जी बोल रही थी तो वो कह रही थी कि दिल्ली में इतना बड़ा पिछले दिनों जो हादसा हुआ, उसके चलते इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। मैं एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, वो आंदोलन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था। सिर्फ 50 लड़के थे जो क्षमा लेके निकले थे, और उन्होंने कहा था कि जो कुछ हुआ है गलत है, इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, इसके खिलाफ मजबूती से आवाज को उठाना पड़ेगा। और उसकी वजह से धीरे 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 पूरे दिल्ली शहर और फिर पूरा देश एक साथ इकट्ठा हो गया। एक ऐसा आंदोलन जिसमें कोई राजनीतिक दर्शन नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई राजनीतिक बिरादरी नहीं, कोई नेतृत्व नहीं, कोई मीडिया फुटेज खाने वाले लोग नहीं, लेकिन नौजवानों का संकल्प था कि बदलाव करना है। नौजवानों का संकल्प था कि व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होना है। नौजवानों का संकल्प था, विश्वविद्यालयों के, महाविद्यालयों के नौजवानों का संकल्प था कि बदलाव करेंगे। तो उन्होंने पूरी व्यवस्था को अपने सामने खड़ा कर दिया और बदलाव की दिशा में बढ़ने लगे। इसलिए यह कहना कि पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स कर गया है, मैं समझता हूं पॉलिटिकल सिस्टम को नए सिरे से खड़ा करने की जरूरत है, उसमें भागीदारी करने की जरूरत है, उसमें सही लोगों को चयन करने की जरूरत है, उनके अधिकार की लड़ाई के साथ खड़े होने की जरूरत है। और अगर हम खड़े हो पाएंगे तो मैं समझता हूं कि सत्ता में जो भागीदारी की बात हो रही है, विषय की बात यही है कि सत्ता के अंदर, सिस्टम के अंदर, व्यवस्था के अंदर आपको हिस्सेदारी और भागीदारी मिलनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने जिम्मेदारी के साथ जिस तरह से पिछले दिनों ताकत दिखाई है देश के अंदर, अगर आपने काम किया तो निश्चित रूप से आपको भागीदारी और हिस्सेदारी मिलेगी। मैं एक बार फिर, चूंकि समय की बंदिश दे रखी है आपने, मैं राहुल भाई को एक बार फिर बहुत बधाई देता हूं। पूरे देश से छात्र समुदाय आया हुआ है, आप ही भविष्य हैं, आप ही भविष्य के नेता हैं, और आप ही को तय करना है भविष्य की राजनीति को और इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को। न केवल राष्ट्र में बल्कि अपने अपने राज्यों में, अपने अपने जिलों में हर व्यक्ति ईमानदारी के साथ खड़ा हो जाए और इस जज्बे के साथ खड़ा हो जाए, इस सोच के साथ खड़ा हो जाए, इस दीवानगी और जुनून के साथ खड़ा हो जाए कि हाँ, बदलाव करना है। मैं जहां हूं, मैं जिस स्थिति में हूं, मैं जिन हालात में हूं, मैं जिन मुश्किलात में हूं, मैं हर हालत में अपने आंदोलन की लड़ाई, अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ूंगा। मुझे लगता है कि अगर इस दिशा में हमने काम किया तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि इस देश के अंदर एक बड़ा छात्र युवा आंदोलन हम खड़ा कर पाने में कामयाब होंगे, और वो ऐसा छात्र युवा आंदोलन होगा जो इस देश की तस्वीर को और इस देश की तकदीर को बदलने का काम करेगा। क्योंकि गांधी जी, हमारे कोई भी आंदोलन बगैर विचार के नहीं चलता। गांधी से बड़ी प्रेरणा कोई हो नहीं सकती। मंडेला साहब जब 26 साल के बाद साउथ अफ्रीका से निकले थे जेल से, तो मंडेला मुस्कुरा रहे थे। तो मंडेला से पूछा गया कि 26 साल जेल में काटे आपने, काले बाल थे सफेद हो गए, जेल के बाहर आप आ गए,
जवानी आपने जाया कर दी जेल के अंदर, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है तो उसका राज क्या है? तो मंडेला ने कहा था कि भारत एक देश है, उस देश में एक व्यक्ति पैदा हुआ था, उसका नाम गांधी था। मैं गांधी से प्रेरणा लेता हूं और गांधी को देखता हूं तो मेरे चेहरे पे सिर्फ मुस्कुराहट आती है और दूसरा कुछ नहीं आता। अभी सूकी आई थी और शायद आपके यहाँ भी आने वाली होंगी, मैंने देखा था बर्मा से। तो सूकी ने कहा कि मैंने इतना बड़ा बर्मा में जो लोकतंत्र का आंदोलन खड़ा किया है, वो लोकतंत्र का आंदोलन गांधी से प्रेरणा लेके किया है। इसलिए मैं मित्रों उम्मीद करता हूं कि गांधी के विचारों से प्रभावित होकर, गांधी के विचारों से प्रेरणा लेके हम तमाम साथी ये संकल्प लें कि इस देश के अंदर, अपने जिले के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर हम जिम्मेदारी के साथ बदलाव करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बदलाव बहुत जल्द दिखाई देगा। ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं, अल्लाह ताला से दुआ करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबके घर में खुशी हो, सुख हो, समृद्धि हो, शांति हो, सौहार्द हो। खुदा करे कि हमारी भी खुशी आपको लग जाए। ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं। जावेद अख्तर साहब की एक बड़ी मशहूर नज़्म है, शबाना आज़मी साहिबा चली गई वरना मैं उनके सामने ज़रूर सुनाता। जावेद साहब की बड़ी मशहूर नज़्म है और उस नज़्म को सुनाते हुए बात को समाप्त करता हूं कि एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाज़ें दो। एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाज़ें दो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज़ सुनो, तुम क्या मानो। हम कहते हैं इंसानों में इंसानों से प्यार रहे। ये सब की तरफ इशारा है। राहुल भाई आपने भी कहा था, ओवैसी से लेकर और बाकी जितने लोग हैं सबकी तरफ इशारा है कि एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाज़ें दो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज़ सुनो, तुम क्या मानो। हम कहते हैं इंसानों में इंसानों से प्यार रहे। वो कहते हैं हाथों में त्रिशूल रहे, तलवार रहे। हम कहते हैं राम राज्य में जैसा हुआ था वैसा हो। वो कहते हैं कि हंगामा होता है तो होने दो। एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाज़ें दो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज़ सुनो, तुम क्या मानो। जय हिंद। बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद जावेद साहब। सम्मान के साथ प्रोफेसर रामजीत सिंह, आप आइए मंच पर और अपने विचारों को युवा नेताओं के साथ साझा करिए। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रोफेसर रामजीत सिंह जी का स्वागत। Friends, it has been my good fortune and a privilege to really bring Mr. Ramjit Singh to the dais. Especially, I am reminded to myself of the year 1996, when this institution had the fortune of organizing the first World Philosophers Meet, which was called as the Parliament of Science, Religion and Philosophy. The brief introduction which was made about Ramjit Singh is not adequate enough, but especially when I saw a great Gandhian, a great philosopher of the world, not of only India alone, who has been the witness for the establishment of the World Peace Center, Alandi, MICE, MIT, Pune. And this very Bharatiya Chhatra Sansad is an outcome of that mission of promoting the culture of peace in the world, convey the message of what Mother India stands for, ये भारत की भूमि का एक संदेश देने के लिए जिस रामजी सिंह साहब ने अपना सारा जीवन समर्पित किया है। गांधी जी और गौतम बुद्धा, बिहार। दोस्तों, मैं एक शब्द कहूँगा कि मैं जब पहली बार कहीं स्विट्ज़रलैंड गया, जब दूसरी संसद बनानी थी स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में, तो मुझे पूछा गया था कि आप कहाँ से हो। तो मैं जब बोला कि आई एम कमिंग फ्रॉम इंडिया, वो मैनेजर बोलता है, ओ दैट ग्रेट कंट्री ऑफ महात्मा गांधी एंड गौतम बुद्धा। इस भारत देश की पहचान सारी दुनिया में किसी नेता के कारण नहीं, लेकिन ये दो है, गांधी और बुद्धा के नाम पे ये देश को जाना जाता है दुनिया में। और उसके पुजारी है हमारे बुजुर्ग, सिर्फ 90 years old young man of India to address the youth of India, Ramjit Singh. परम आदरणीय खरात साहब, उनके सुपुत्र
हमारे राहुल जी, यहाँ हमारे माननीय नदीम साहब सुल्तानपुर के विधायक, और सबसे अधिक तो तीसरी पीढ़ी के हमारे आप सब साथी। स्वामी विवेकानंद जब गए शिकागो में भाषण करने के लिए, तो उन्होंने अध्यक्ष मंत्री सब कुछ नहीं कहा सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। लेकिन आप तो तीसरी पीढ़ी के हैं, तो मुझे लगा कि अगर मैं कहूँ कि माय डियर ग्रैंड डॉटर्स एंड ग्रैंड सन्स, तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, ये युवा और वृद्ध का परस्पर विरोध भारतीय संस्कृति के खिलाफ तो है ही, यह वैज्ञानिकता के भी खिलाफ है। अगर अभी विश्वनाथ करात साहब आए, इनको पूछा जाए कि आपकी क्या इच्छा है, तो क्या कहेंगे? और मैं शिक्षक जीवन भर रहा हूँ, मेरी क्या इच्छा है? तो पिता पुत्र से पराजय चाहता है और गुरु शिष्य से पराजय चाहता है। पुत्रात् इच्छेत पराजयम, शिष्यात् इच्छेत पराजयम। महाकवि कालिदास ने मालविकाग्नि मित्र नाटक के शुरू में कहा कि ये बड़े और छोटे का भेद, वृद्ध और युवक का भेद गलत है। उन्होंने कहा कि ये कहना कि सभी पुराने लोग अच्छे होते हैं और ये कहना कि सभी युवा वर्ग के लोग खराब होते हैं, ये दोनों गलत है। ये पहला श्लोक है मालविकाग्नि मित्र का। इसीलिए हमको जब इस पर चर्चा करनी चाहिए तो थोड़ा सा संतुलित होकर की चर्चा करनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि जो हमारे विद्यार्थी हैं या जो युवक हैं, युवक को क्यों कहा जाता है? एक बात तो बहुत मेरे समझ से गलत दर्शन है कि हम मान लेते हैं कि अध्यात्म और राजनीति केवल अनुभव प्राप्त वृद्ध बड़े लोगों का है, अभी जैसा बताया गया। ये गलत है। अगर आप देखेंगे इतिहास, मानव सभ्यता का इतिहास अगर आप देखेंगे, तो आपको लगेगा कि युवक लोग अध्यात्म के क्षेत्र में भी अपने सबसे बड़ी ऊंचाई पर हैं। वो कौन थे? सनत कुमार छोटे थे, नचिकेता छोटे थे, राम और लक्ष्मण छोटे थे, कृष्ण संदीपन के आश्रम में छोटे थे। इसीलिए अध्यात्म बुढ़ापे की बुरभस नहीं, जब दांत टूट जाए, केस सफेद हो जाए, तब अध्यात्म शुरू होना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति नहीं है। ध्रुव और प्रहलाद कौन थे? अध्यात्म के शिखर पर थे, लेकिन वो युवा थे। उसी प्रकार राजनीति के संबंध में भी ये कहना कि युवा नहीं कर सकते, शायद इस पर पुनर्चिंतन करना होगा। मैं 5 बातें इस संबंध में आपके सामने कहता हूं। एक, समाज मनोविज्ञान की दृष्टि से और मानव मनोविज्ञान की दृष्टि से देखिए, जो युवा शक्ति होती है, युवक जो होता है, उसके पास ऊर्जा रहती है, उसको साइकोलॉजी में सरप्लस एनर्जी होती है। हम लोग थोड़े हैं, सो जाएंगे, लेकिन आप में शक्ति है, और जहां शक्ति नहीं है वहां परिवर्तन भी नहीं हो सकता। लेकिन केवल शक्ति ही नहीं है, युवक लोगों में, उनमें जोखिम उठाने की क्षमता भी रहती है।
रिस्क ले सकते हैं, जोखिम उठा सकते हैं, और जो जोखिम नहीं उठा सकता है वह इनकलाब नहीं कर सकता। तीसरी बात है कि जब आप सोचिए आध्यात्मिक दृष्टि से, तो आप जानते हैं कि बच्चा निष्पाप होता है, इसीलिए निहित स्वार्थ, वेस्टेड इंटरेस्ट बूढ़े बुजुर्गों में ज्यादा होता है, नौजवानों में वेस्टेड इंटरेस्ट कम से कम होता है, और जिसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है वो सब कुछ हो सकता है, क्रांतिकारी नहीं हो सकता। एक और चीज कहते हैं कि इतिहास साक्षी है कि जब युवा शक्ति जगती है, अभी 30 बरस पहले जब युवा शक्ति यूरोप में जगी तो फ्रांस का डेगाल हट गया। कितनी बड़ी बड़ी ताकतें अपने भारत में भी जब युवा शक्ति जगी तो इमरजेंसी कहां गई कुछ पता नहीं है, शायद इतिहास के कूड़ेदान में चली गई थी। इसीलिए युवा शक्ति के पास, युवा शक्ति की अर्चना, अभ्यर्थना, असल में मुझसे पूछिए तो ये भगवान की और युग पुरुष की, युग धर्म की वंदना है। मैं इसलिए ये कहता हूं, दूसरा शब्द जो आपके पास है कि ये जिस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात कहते हैं, बहुत लोग कह करके चले गए, लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो अंग्रेजी सभ्यता, अंग्रेजी संस्कृति और अंग्रेजी राजनीति की लिगेसी है, विरासत है। और मैं बहुत विनय के साथ, विस्तार में तो फिर कभी मैं कहना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार राजतंत्र के इस खंडहर पर प्रजातंत्र का उठे नवशिखर, जो प्रजातंत्र आया था, जो हिंदुस्तान नहीं समूचे दुनिया में जो लोकतंत्र का प्रवाह चला, तो प्रथम प्रवाह यूनान और रोम के पहले भारत में चला था। ये प्रजातंत्र किसको कहते हैं? पॉलिटिकल इक्वल, यानी राजनीतिक समानता में जो आस्था रखता है वही लोकतांत्रिक व्यक्ति है। और इसलिए आप जानते हैं कि जो ये प्रजातंत्र का था भारत में, वेद का हम सूत्र एक कहते हैं, संज्ञान सूत्र, संगच्छध्वम संबद्धध्वम संगमनांसी जानताम। ये समाना वो आकुति समाना हृदयानियो सहचित्त में शाम। जहां समानता की वंदना इतिहास में थी वैदिक, और वैदिक युग में इतिहासकार हो, गलत हो तो हमें बता देंगे, भारतवर्ष में लोकतंत्र बहुत पहले था, जब यूरोप के लोग सपना भी नहीं सके थे। मैं कोई क्षुद्र राष्ट्रीयता की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, इतिहास का सत्य कह रहा हूं आपसे कि वैदिक युग में, वो देखिए आप पढ़िए काशी प्रसाद जायसवाल की किताब हिंदू पॉलिटी। हिंदू का मतलब वो सांप्रदायिक नहीं है, वो इतिहास के कितने विद्वान, उन्होंने कहा था कि वहां गणराज्य थे। मैं तो बिहार से आता हूं, और लिच्छवी तो बाद में आए, लेकिन वैदिक युग में गणराज्य थे। एक एक गांव में गणराज्य हुआ करते थे, और गण सभा होती थी, और गण समिति, काउंसिल ऑफ पर्सन्स जो कहते हैं अभी कुछ लोग, वो गण समिति कहते थे, और गण सभा होती थी। तो उस समय गांव छोटे छोटे में थे, लेकिन स्वयं पूर्ण स्वावलंबी थे। और भारत के इतिहास को अगर समझना चाहें तो आप समझ लीजिए, जब तक गांव पूर्ण रूप से स्वायत्त, स्वावलंबी और स्वयं पूर्ण थे, तब आक्रमणकारी आए,
शक्सिथियन, गुर्जर, प्रतिहार, यूनानी, पठान, मुगल, लेकिन भारत का गांव स्वतंत्र रहा। आज भारत का गांव ही समाप्त हो रहा है। भारत माता ग्रामवासिनी तो मैं इसलिए आपको कहा कि ये जो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी जो चिल्ला रहे हैं, ये डेमोक्रेसी का जो वैचारिक और आध्यात्मिक और राजनीतिक स्वरूप भारत के इतिहास में गर्हित था। और लेकिन हम लोग तो, हमारी बदकिस्मती थी कि हम लगभग 1000 वर्ष तक गुलाम रहे। मैं गुलाम भारत में पैदा हुआ था, लेकिन युवा शक्ति का जब आरोहण हुआ तो देश की आज़ादी भी देखी। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, ये जो प्रजातंत्र लोकतंत्र है, ये भारतीय संस्कृति का नहीं है। आप क्या कहते हैं, भारत में पंचायत की संस्कृति गांधी जी ने कही। ये जो बनाया गया 73rd अमेंडमेंट और जो 39 अमेंडमेंट जो धारा थी भारतीय संविधान की, वो पंचायत नहीं, बल्कि पंचायत का मतलब जो 5 ही मत लागहीनी का, 4 बोले परमेश्वर नहीं, 5 बोले परमेश्वर। इसीलिए सहमति, कंसेंसस, और जिस तरह से देश की लोकसभा रहते हुए भी देश 2 खंडों में, 3 खंडों में बट गया है, जिस तरह से प्रदेश बट गए हैं, उसी तरह से ये पंचायत जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को किया गया है, पंचायत भी बस बट गए हैं। इसीलिए कैसी पंचायत होनी चाहिए, कैसा लोकतंत्र होना चाहिए, अभी समय नहीं, लेकिन वो है। और इसीलिए गांधी जी ने इस लोकतंत्र को क्या कहा था, छोड़िए मेरी बात, आपने गांधी की बड़ी प्रतिष्ठा की, और ये जो लोकतंत्र चल रहा है, जो हमने उधार लिया है अंग्रेजों से, उसके विषय में उनकी किताब हिंद स्वराज में वो शब्द कहें आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, लेकिन अहिंसा का अवतार कह रहा है कि ये जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी इज ओनली सो कॉल्ड, इट इज डाइल्यूटेड फासिज्म एंड नाजिज्म। और कहा नहीं, ये समझने की बात है कि आप लोकतंत्र, हम तो सुने स्पीकरों का, सुने सांसदों का, सुने, लेकिन लोकतंत्र भारत में 21वीं सदी में भारत लोकतंत्र का एक नया रूप प्रदर्शित करेगा। गांधी जी ने इसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कहा था कि ये बैरन ओमेन, लाइक ए बैरन ओमेन, बांझ औरत की तरह, और कहा था, सुनेंगे, ये इट इज लाइक ए प्रोस्टिट्यूट। बैरन ओमेन क्यों कहा? अपनी इच्छा से पार्लियामेंट कोई काम नहीं करता। मैं जब पार्लियामेंट में था तो मैंने राइट टू वर्क बिल रखा था, राइट टू रिकॉल रखा था, लेकिन हम दबाव बना नहीं सके। थोड़ा सा दबाव बनाया अन्ना ने और रामदेव बाबा और लोगों ने और युवा शक्ति, तब वो काम करने पर 20 बरस से महिला बहनों को 33% अधिकार देने के लिए पड़ा है, लेकिन वो बिल पास नहीं हो सका। ये पार्लियामेंट बांझ की संगति है। मित्रों, देश में जो बड़े बड़े सवाल हैं, गैर बराबरी का कहा, आप आंकड़ा जानते हैं, ये देश में दौलत तो बढ़ी है, 9.4% तक चला गया है, लेकिन इस देश में गैर बराबरी कितनी बढ़ी है आप जानते हैं? 10 लाख गुना। इस देश में माओवाद और नक्सलवाद को क्या उत्तर देंगे? आपने एक अच्छा प्रस्ताव पारित किया है कि हम शांतिपूर्ण वार्ता, मैं तो वो रायपुर, जगदलपुर और दांतवाड़ा में गया भी था उन लोगों के पास। मित्रों, हम तो कहेंगे कि रेड हंट भी खत्म हो और ग्रीन हंट भी खत्म हो और मिल करके इस समस्या का समाधान ढूंढा जाए। मैंने आपको अभी इतना ही, हम बहुत
हम शायद समय का अतिरेक कर रहे हैं, लेकिन नए लोकतंत्र को समझना होगा जो पार्टी सिस्टम पर आधारित नहीं होगा। पार्टी सिस्टम में क्या होता है? पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। भारत के पार्टियों में एक आध जगह छोड़ के थोड़ा बहुत जो हर हाईनेस और हिज हाईनेस का जो आदेश होता है वही होता है। चाहे वो मैं किसी दल, मेरे बहुत सब साथी हैं, चाहे सपा हो, चाहे राजद हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सब अपने अपने घरौंदे में कैद रहते हैं। मित्रों, आंतरिक लोकतंत्र के बिना ये पार्टियां जनता को सच्चा लोकतंत्र नहीं दे सकती। इसीलिए मैं समाप्त करता हूं कि लोकतंत्र की एक नई अवधारणा, युवा शक्ति, नई चीज खोजिए। पुराने 1000 वर्षों की सड़ी हुई चीजों को सर पर रखना नहीं चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, युवकों से एक आकांक्षा की थी कि अगर 100 समर्पित युवक हमको मिल जाए तो हम भारत का भाग्य पलट सकते हैं। कल स्वामी जी की जयंती है, क्या हम लोग 100 आदमी को जमा कर सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। Here to give a standing ovation to Ramji Singh ji. रामजी सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम निवेदन करेंगे अपने दोनों मुख्य वक्ताओं से, रामजी सिंह जी और नदीम जी, आप दोनों यहाँ पोडियम पर आ जाएं। हमारे युवा साथी आपसे अनघा, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आती हैं, पोडियम नंबर 5, प्रोफेसर रामजी सिंह जी से सवाल करेंगे। सर, मेरा सादर प्रणाम। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, बनारस से हूँ। मेरा एक सवाल ये था कि जब हम अब ये समझ गए हैं कि युवा पीढ़ी को अब आना चाहिए और पूरा इस भारतीय छात्र संसद का उद्देश्य यही है कि युवा पीढ़ी को पॉलिटिक्स में प्रेरित किया जाए, तो क्या अब समय नहीं आ गया है कि जो पुराने इस तरीके के पॉलिटिशियंस हैं उनको अपने आप को विड्रॉ कर लेना चाहिए कि युवा पीढ़ी को एक मौका मिले? देखिए बहन, युवा और वृद्ध जो हैं ये अवस्था से, उम्र से नापे नहीं जा सकते, ये तो स्पिरिट से नापे जा सकते हैं। 16 वर्ष का नौजवान भी रूढ़िवादिता से परेशान हो सकता है और हमारे जैसा 88 वर्ष का भी वृद्ध आपके साथ चलने के लिए तैयार हो सकता है। थैंक यू सर। शुक्रिया रामजी सिंह साहब, आप बने रहिएगा। नदीम जावेद साहब से सवाल करेंगे। पोडियम नंबर 1 पर हम लोग चलेंगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड पर, पोडियम नंबर 1 पर, जहां पर अभिषेक यादव हमारे साथ में हैं, पुणे महाराष्ट्र से आते हैं। अभिषेक, अपना सवाल पूछिए नदीम जावेद साहब से। सबसे पहले सादर प्रणाम करना चाहता हूं आप सबको। सर, मेरा सवाल ये है कि यूपी आज भी मेल डोमिनेटेड स्टेट क्यों है? 224 सीट्स में से सिर्फ 19 सीट्स ही क्यों मिली है नारी को? जहाँ की नारी घर से बाहर नहीं निकल सकती, सेफ नहीं रह सकती, वो स्टेट कैसे डेवलप हो सकता है? मैं ये बहुत अच्छा और बड़ा बुनियादी सवाल आपने उठाया है और मैं समझता हूं कि इसको उत्तर प्रदेश के दायरे में सीमित कर देना भी शायद ठीक नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के इशू पर लागू होता है कि जो अधिकार महिलाओं का, लड़कियों का पॉलिटिकल सिस्टम में होना चाहिए, वो अधिकार अभी तक उन्हें नहीं मिल पाया है। और इसीलिए ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कोशिश हो रही है कि लोकसभा के अंदर जो महिलाओं के आरक्षण का बिल है वो पास हो जाए, और जब आरक्षण का बिल पास हो जाएगा तो निश्चित रूप से उनकी जो भागीदारी है वो सुनिश्चित हो जाएगी, जैसे पंचायतों में हुई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार का प्रेशर
और जिस प्रकार का वातावरण नौजवान लड़कियों ने, बहनों ने बनाया है पूरे देश के अंदर, जरूर हमें उसमें कामयाबी मिलेगी। शुक्रिया। और अब हम चलेंगे सीधे पोडियम नंबर 2 पर। इस तरफ से पोडियम नंबर 2 पर हम लोग चलेंगे, जहां पर अंकुर हमारे साथ हैं, ग्वालियर से, मध्य प्रदेश से आते हैं। अपना सवाल करेंगे रामजीत सिंह जी के लिए। अंकुर, पोडियम नंबर 2 से। नमस्ते सर। सर, मेरा नाम अंकुर काटे है, मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से आता हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि सिर्फ यंग लीडर ही क्या सिस्टम में चेंज ला सकते हैं? क्या पॉलिटिशियंस और यंग लीडर और ओल्ड लीडर्स दोनों मिलकर चेंज नहीं ला सकते? अगर हम आज भी देखें, नरेंद्र मोदी 55-56 की एज में ज़्यादा एनर्जेटिक है, ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है किसी भी यंग लीडर से। मेरा ख्याल है कि हम लोगों को युवा और वृद्ध का कोई पोलराइजेशन खड़ा करना नहीं है। आप जोश भी रखें और होश भी कहीं से मिले आपको, दोनों को मिला देंगे तो क्रांति सम्यक होगी। 79 वर्ष का गांधी भी भारत का सिपाहीसालार हो सकता है, और बिहार आंदोलन 1974 में करीब 75 वर्ष के जयप्रकाश भी भारत को हिला सकते हैं। थैंक यू सर। शुक्रिया। और अब हम सीधे चलेंगे पोडियम नंबर 2 पर। पोडियम नंबर 2 पर, जहां पर रत्नेश दुबे मौजूद हैं, लॉर्ड्स कॉलेज ऑफ लॉ मुंबई से। रत्नेश दुबे अपना सवाल पूछेंगे नदीम जावेद साहब से। गुड इवनिंग। I just want to ask one question. Victim is usually. आप है किस तरफ हुजूर? Sorry. पोडियम नंबर 2, लेफ्ट हैंड साइड। Yeah. Victim is usually blamed for a cause of violence. Instead of filling the loopholes in the law, which the culprits take advantage of, our politicians usually concentrate on the length of the girl's skirt. Are our old politicians out of sync with the requirements of the young India? मैं समझता हूं कि जो एक धारणा पॉलिटिकल क्लास और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बनी है, और जिसका जिक्र राज्यसभा चैनल के हमारे साथी ने भी किया था, वो बहुत हद तक शायद सही नहीं है, चूंकि हम उनको बहुत करीब से जानते नहीं। लेकिन जो बात आपने की है, कहीं ना कहीं धारणा इस तरह की है, और इस पूरी व्यवस्था को और पूरे सिस्टम को जो ठीक करने की बार बार बात हो रही है, वो पार्टिसिपेशन से ही संभव है। उसके बिना ये संभव नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का जब पार्टिसिपेशन सिस्टम में ज़्यादा होगा, तो इस व्यवस्था को और इस सोच को हम बदल पाने में कामयाब होंगे। शुक्रिया। और अगला सवाल पोडियम नंबर 4 से, इस तरफ से जॉयसी जॉय इडुक्की केरला से सवाल पूछेंगे रामजीत सिंह जी से। पोडियम नंबर 4 से। Good evening, sir. I'm Joycey Joy from Kerala. My question is, India has a large population of human resources, and out of that, 60% of them are youth. Why then India is still known as a developing nation rather than a developed nation? Is it because of the conviction of our old leaders? Not only the old leaders are responsible, but our psyche. And also, I think, leave aside the old leaders. Let them go to rest. Let the young men take this challenge. And unless you resolve to take challenge for the fundamental principles, and if you are only engaged a pause just of different political parties, then you will fight amongst yourselves. Therefore, Gandhiji said that a student life is a life for being politically conscious, but not politically active. You should not join. You may agree, you may not agree with Gandhi. That is a different question. Therefore, when he had given the call, clarion call for joining Satyagraha, he had asked, if you want to come to Satyagraha, you give up your studies. But so long you are a student, your primary duty, your swadharma is swadhyaya pravachanam. Therefore, I think that is while we are students,
we should confine to this extent that we should be conscious, we should impartially study well the loopholes and the advantages of all political manifestos and their actions. But being a toy of the political parties, every political parties have got young, forums. I would not name anybody, but and what they use them for their votes, nothing else. And they have not asked any political party who are ready to give right to work for every individual of youth. No, they will not be able to do it. Therefore, I think that the political demand of having political parties, they just, monopolize the trade unions, because trade unions have got power. So every political power have their trade union organization. Similarly, they have a student organization. With the result, one fights with the other, and there is no people's movement. That is, therefore, we should think of it, and we should develop a national all-party, not all-party to differ in just one day, disintegrate in 1 day or 2 days, but a non-violent, non-party or all-party, whatever you like to say, forum should be made, and only that can solve this great problem. Otherwise, we are in this stage of, a corporate imperialism, whether it is Congress, whether it is BJP, whether it is other parties. They have they have just detoured the corporate system of the world. One East India Company came, we were slaves for 200 years. Now, 2,000 corporate foreign companies are welcome here. We have signed on the WTO agreement. Therefore, these conditions are coming up. So only this entertainment will not do. We have to develop a new sense of sacrifice, a new asceticism, and a new system of political, movement, not confined only to these parties. Thank you. थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन सवालों के जवाब देने के लिए। और अब मैं राहुल बोंद्रे जी को आमंत्रित करूंगी। चिखली बुल्ढाना से कांग्रेस के एमएलए हैं, कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए। राहुल बोंद्रे जी। तीसरी छात्र सांसद में उपस्थित सभी युवा सांसद, बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, मैं सबसे पहले महाराष्ट्र के बाहर से आए हुए सभी युवा सांसद और सभी अतिथिगण का महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज जी और बाबा साहब अंबेडकर की इस पवित्र महाराष्ट्र भूमि में तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्रोफेसर रामजी भाई और नदीम भाई जैसी प्यारी हिंदी तो मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन कहते हैं कि भाषा तो अपने विचारों को व्यक्त करने का एक और दूसरों तक पहुंचाने का एक माध्यम है, और इसीलिए भाषा की सुंदरता से विचारों की ऊंचाई ज़्यादा महत्व रखती है, और इसीलिए मेरी भावनाओं को आप जरूर समझ पाओगे। 90 साल के युवा गांधीवादी रामजी भाई साहब को देखने के बाद और सुनने के बाद मुझे जगजीत सिंह की वो गज़ल याद आ गई कि ना उम्र की सीमा हो, न जन्म का हो बंधन, जब देश प्रेम करे कोई तो देखे केवल मन। मैंने पीछे एक न्यूज़ पढ़ी थी, और उस न्यूज़ को पढ़ने के बाद मेरे जैसे ही हर भारतीय को गर्व हुआ कि वैशालिनी नाम की एक
8वीं क्लास की लड़की, 11 साल की एक लड़की, भारतीय लड़की का आईक्यू पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आंका गया। गिनीज रिकॉर्ड 210 आईक्यू का है और इस वैशालिनी का आईक्यू 225 पाया गया। टू थर्ड पॉपुलेशन हमारे इस देश की युवा है, 35 साल के नीचे की है। 2020 में हमारा देश विश्व का सबसे युवा देश होने वाला है और मैं आगे जाके कहूंगा कि विश्व का सबसे युवा देश ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे युवा और टैलेंटेड देश ये होने वाला है। युवाओं की बहुत ज्यादा एनर्जी हमारे पास है, बहुत ज्यादा शक्ति है, लेकिन कहते हैं कि नदी में अगर बाढ़ आ जाती है तो काफी नुकसान वो कर जाती है, काफी तबाही मचा देती है और आखिर में ये पानी समंदर में जाके मिलता है, मीठा पानी खारा हो जाता है। लेकिन इसी नदी में अगर डैम कंस्ट्रक्ट किया जाए और कैनल्स के थ्रू अगर ये पानी गांव में पहुंचाया जाए तो ये पानी पीने के काम आएगा, फसल उगाने के काम आएगा, इंडस्ट्रीज बढ़ाने के काम आएगा और सबसे बढ़िया काम इस डैम की पानी से बिजली का निर्माण हो सकता है। तो ये पानी डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और उसको ठीक से चैनलाइज करो तो वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। इसी तरह से हमारे पास युवाओं की शक्ति है, बहुत बड़ी एनर्जी है, लेकिन इस एनर्जी को ठीक से चैनलाइज ना करो तो वो देश को बर्बाद भी कर सकता है और उसको ठीक से चैनलाइज करो तो वो देश को आबाद भी कर सकता है। मैं राहुल कराड़ साहब और विश्वनाथ कराड़ साहब का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि वो ये युवा शक्ति को चैनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इनमें नेतृत्व गुण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि हमारे पास आईक्यू अच्छा है, लेकिन इसके साथ ईक्यू की भी जरूरत है, इमोशनल क्वोशंट की भी जरूरत है। और इमोशनल क्वोशंट आता है एक्सपीरियंस से और एक्सपीरियंस होता है बुजुर्ग लोगों के पास। तो इन बुजुर्गों को भी प्रवाह में रखना चाहिए, धारा में रखना चाहिए। मैंने ओ हेनरी की एक बहुत बढ़िया कहानी पढ़ी कि एक नौजवान किसी कारणवश अपने बूढ़े बाप को बाहर सोने के लिए भेज देता है। बाहर एक गार्डन में बेंच है, उस पर सोने के लिए भेज देता है। बाहर बहुत ठंड है, सर्दी है, तो वो अपने 10 साल के छोटे बेटे से कहता है कि दादाजी को एक ब्लैंकेट दे देना। 10 साल का ये बेटा बहुत होशियार है, वो ब्लैंकेट के 2 हिस्से कर देता है और एक हिस्सा दादाजी को देता है। सवाल पूछने पर वो अपने पिताजी से कहता है कि पापा, मैंने एक हिस्सा ब्लैंकेट का दादाजी को दिया और दूसरा मेरे पास रखा क्योंकि मैं जब बड़ा आपके उम्र का हो जाऊंगा तब आप भी तो दादाजी के उम्र के हो जाएंगे और तब आपको ये ब्लैंकेट जरूर काम आएगा। किसी ने कहा है कि तन की सुरक्षा के लिए काया बहुत जरूरी है और भवन की सुरक्षा के लिए पाया बहुत जरूरी है। कोई माने या ना माने, घर में बुजुर्गों का साया बहुत जरूरी है। गांधी जी के पीछे अगर इस देश के नौजवान खड़े नहीं होते थे तो क्या हमें आजादी मिल सकती थी? एपीजे अब्दुल कलाम साहब का मिशन 2020 क्या युवाओं के बिना पूरा हो सकता है? और क्या इस देश का हर नौजवान खुद में मैं अन्ना हजारे हूं ऐसा जब तक नहीं कहता है तब तक क्या इस देश भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है? तो जरूरत है बुजुर्ग और जवान युवा दोनों ने साथ में काम करने का। जरूरत है एक्सपीरियंस और एनर्जी दोनों साथ लाने की। जरूरत है होश और जोश दोनों साथ काम करने की। जरूर ये देश युवा है और नेतृत्व इसका बूढ़ा है, ये मैं मानता हूं, लेकिन इस देश के युवा अब आगे बढ़ रहे हैं। इसके देश के युवा अब जमा हो रहे हैं, सोच रहे हैं
आज अखिलेश यादव जी हमारे बीच यहाँ पे नहीं है, इस मंच पर उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सामने आए और भारत के सबसे बड़े राज्य के आज सीएम बन चुके हैं। वहीं बात इस देश के बारे में भी होगी। इस देश का युवा आगे आएगा और जल्दी ही इस देश का नेतृत्व भी युवा होगा। मैं जरूर सोचता हूं कि ये जरूर होने वाला है और तभी हम फक्र से कह पाएंगे, गर्व से कह पाएंगे, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये देश विश्व विजयी होने वाला है, ये देश जरूर कामयाब होने वाला है। विश्व विजयी होने के लिए आप सभी से मैं विनती करता हूं कि आप आगे आइए और इस देश को विश्व विजयी बनाने के लिए हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए आप तैयार रहिए। मैं विश्वनाथ कराड़ साहब, राहुल कराड़ साहब और उनके सभी साथियों का दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा उनका करता हूं कि बहुत बढ़िया प्रोग्राम उन्होंने यहाँ पे रखा है। आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। जय मानव, जय जगत। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल बोनरे जी अपने वक्तव्य के लिए आपका। और अब मित्रों वक्त हुआ है रेजोल्यूशन का और उसके लिए देवेंद्र पाई को मैं आमंत्रित कर रही हूं। आज का रेजोल्यूशन पढ़ेंगे और आप उस पर वोट करेंगे। We the student leaders assembled here in the 3rd Bharatiya Chhatra Sansad hereby appeal to the government to enact a law for all national and regional parties to reserve 50% candidateship for youth between 25 to 45 in all types of elections to promote youth participation in politics. तृतीय भारतीय छात्र सांसद में एकत्र हुए हम समस्त छात्र नेता सरकार से यह निवेदन करते हैं कि राजनीति में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए वह समस्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को सभी चुनावों में 50% उम्मीदवारी 25 से 45 वर्ष के युवाओं के लिए सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाएं। ये रेजोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए आपके मोबाइल फोन से टाइप कीजिए BCS5 Y और इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए टाइप कीजिए BCS5 N और भेजिए 9212148888 पर। और आपका समय शुरू होता है अब। तो बड़ी संख्या में वोट करिए मित्रों। ये आपका जो वोट है ये जाया नहीं जाएगा, ये वोट यहाँ से आगे जाएगा, राज्य सरकारों और देश की सरकार, केंद्र सरकार तक जाएगा। इसलिए बड़ी संख्या में आप वोट करिए। हम अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के प्रति भी जो कि आज 250 यूनिवर्सिटीज़ देश की हैं, जिनमें करीब 60,000 स्टूडेंट्स हमारे आज का ये कार्यक्रम लाइव वेबकास्टिंग के माध्यम से देख रहे हैं। इन 60,000 छात्रों के लिए हम अपना आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे आज के कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं और अब उम्मीद करते हैं कि वो कल भी हमारे इस कार्यक्रम को वेबकास्टिंग के माध्यम से देखेंगे। तमाम भारत की यूनिवर्सिटीज़ के जो कि करीब संख्या में 250 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके छात्रों का हम धन्यवाद करते हैं और यहाँ तालियों के साथ हम उन सभी अपने छात्रों का स्वागत करते हैं। 250 यूनिवर्सिटीज़ के करीब 60,000 छात्रों ने हमारा ये कार्यक्रम देखा है। तो मित्रों ये प्रस्ताव बड़ी संख्या में यहाँ से पास होकर जाना चाहिए। जैसे कि इस पूरे सेशन के दौरान अलग अलग मांग उठी हैं। क्या पॉलिटिशियंस को रिटायर करना चाहिए, क्या उसके लिए कोई उम्र होनी चाहिए, क्या कोई रिटन टेस्ट होना चाहिए, राजनीति में जो लोग आते हैं उनके लिए भी कोई टेस्ट हो जाए क्या कोई शिक्षा का पैमाना होना चाहिए जो लोग पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं, क्या राइट टू रिकॉल होना चाहिए। ये सब बड़े मुद्दे हैं मित्रों। कोशिश करेंगे हम अपने आने वाले भारतीय छात्र संसद के मंच से इन मुद्दों को भी उठाएं और आपकी राय क्या है इस पर उसके बारे में जानें। अपनी राय भेजिए हमें। आपके पास में वक्त कुछ पलों का बचा है, अपनी राय से हमें अवगत कराइए। यहाँ बड़े स्क्रीन पर हम आपकी राय को प्रदर्शित करेंगे। आखिर कितने प्रतिशत लोगों ने हमारे आज के प्रस्ताव को मत दिए हैं या रिजेक्ट किया है। और मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहती हूँ कि अभी इस मत के बाद
हम राष्ट्रगान के लिए खड़े होंगे और उसके बाद राहुल देशपांडे जी, जाने माने शास्त्रीय गायक, अपनी प्रस्तुति देंगे। तो इसलिए कार्यक्रम को खत्म हुआ ना मान लें। राष्ट्रगान के बाद राहुल देशपांडे की प्रस्तुति रहेगी और कल सुबह में एक बार फिर से हम सब यहाँ हाजिर हो जाएंगे कुछ नए सेशंस के साथ। कल भी यहाँ 3 सेशंस आपके समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे और फिर उसके बाद दोपहर बाद वैलिडिक्ट्री सेशन होगा। तमाम महानुभाव, विचारक, चिंतक, पॉलिटिशियंस, राजनीति से जुड़े हुए लोग और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, स्पोर्ट्स से जुड़े लोग यहाँ पहुँचेंगे, आपके साथ में विचारों का आदान प्रदान करेंगे। और ये आप रिजल्ट्स देख सकते हैं, 90.73% लोग ये कहते हैं कि ये प्रस्ताव उन्हें मंजूर है। हे कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन। दोस्तों, ये प्रस्ताव हमारे लिए है। छात्र सांसद से भारतीय सांसद का सफर हमारा शुरू हो रहा है। क्या बात है। 90.73% लोग इस मत का प्रस्ताव करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ इस रेजोल्यूशन में आप शामिल हुए। और अब जैसे कि हमने आपको बताया था, राष्ट्रगान का वक्त है। हम सब अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे राष्ट्रगान के लिए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे,